Students, differentiation is the base of calculus. Differentiation मैथ का सबसे important topic है. Let's understand step by step limits, continuity, differentiation, derivatives. Watch the video till the end. Believe me, इस वीडियो को देखने के बाद आपके differentiation के जितने भी conceptual doubts हैं वो clear हो जाएंगे. We will start with limit of a function. The limit of the function f of x as your x approaches a is written as limit x tends to a f of x. यानी कि जो लिमिट है वो फंक्शन कैसे बिहेव करता है नियर अ पॉइंट. The limit tells how a function behaves near a point, not exactly at that point, but as it approaches that point. तो लिमिट में दो चीजें हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, यानी कि x जो है वो a को अप्रोच करता है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. फॉर एग्जाम्पल लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मीन्स जो x की वैल्यू है वो 0 की तरफ जाती है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड से -1 से 0 की ओर. So that is called the left hand limit. Right hand limit means limit x tends to a plus fx. X approaches a from the right hand side. यानी कि limit x tends to 0 plus है तो वो 1 से 0 की ओर जाता है, तब फंक्शन का बिहेवियर है that is limit x tends to a plus fx. अगर right hand और left hand limit दोनों equal है then that itself is the limit of the function. So limit x tends to a fx is defined as limit of the function f. These are some very important formula for limits. इसमें specially limits x tends to a x raised to n minus a raised to n upon x minus a is n into a raised to n minus 1. Sin x by x की limit 1 है. Limit x tends to 0 1 minus cos x by x की limit 0 and limit x tends to 0 tan x by x limit is 1. So these are very important results on limits. अब एग्जाम्पल लेके लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स. इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी अज्यूम के लेट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू y. सो इफ योर x टेंड्स टू 0 y विल टेंड टू 1. ठीक है, जैसे x की वैल्यू 0 की ओर जाती है y की वैल्यू 0 प्लस 1 यानी 1 की ओर जाती है. सो अब हमारा फंक्शन क्या हो गया, लिमिट y टेंड्स टू 1 y रेज टू हाफ माइनस 1 अपॉन x क्या है y माइनस 1. तो अब इसमें हमारा फॉर्म यूज होगा फॉर्मूले लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a. सो दिस लिमिट विल बी हाफ इंटू a तो 1 ही है, दैट मीन्स इट इज जस्ट हाफ. Second one, limit x tends to pi by 2 tan 2x upon x minus pi by 2. Now, डायरेक्टली अगर आप x की वैल्यू pi by 2 रखेंगे तो ये 0 by 0 फॉर्म हो जाएगा. So we will have to simplify it further. जो x minus pi by 2 है इसको हम z लेंगे तो as your x tends to pi by 2 z will tend to 0. तो अब हमारा क्या हो गया फंक्शन, limit z tends to 0 tan of 2x means pi plus 2z upon z. इसको डिफरेंशिएट, इसको करेंगे डिफरेंट. लिमिट z टेंड्स टू 0 tan of pi plus 2z tan of pi plus theta all STC यानी थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, तो tan of pi plus 2z is tan of 2z upon z. तो अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x is 1. Therefore, this limit will be equal to 2 into 1 which is 2. एक सिंपल एग्जांपल से पहले समझते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेक x माइनस कॉट x. कोसेक को 1 अपॉन साइन, कॉट को कॉस अपॉन साइन रखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x बाय साइन x. नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x. तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस x अपॉन x और नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में sin x अपॉन x. तो
नाउ अवर स्टैंडर्ड फॉर्म 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स की लिमिट 0 है और साइन एक्स बाई एक्स की लिमिट 1 है, तो 0.1 विच इज 0. You have to find limit x tends to 0 fx if it exists. Fx is defined as mod x upon x if x is not equal to 0 and fx is 0 if x is equal to 0. Always remember that the limit of a function exists only if its left hand and right hand limits are equal. Another thing, mod x is an important function. It is defined as minus x if x is less than 0 and plus x if x is greater than or equal to 0. So now limit x tends to 0 minus, यानी जैसे ही x की वैल्यू नेगेटिव साइड से 0 की ओर जाती है, mod x by x will be by definition minus x by x which is minus 1. And as x tends to 0 plus, यानी from the right hand side, it will be mod x upon x will be x upon x which is 1. Both the limits are not equal and they are also not equal to the limit at x equal to 0. So the function limit does not exist. ये एग्जाम्पल लिमिट समझने के लिए बहुत ही अच्छा है. इफ एफ एक्स इज डिफाइंड एज मॉड एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 if x is 0 and एफ एक्स इज डिफाइंड एज मॉड एक्स माइनस 1 if x is greater than 0. For which values of a limit x tends to a fx will exist. a की वो values find करनी है जिसके लिए limit x tends to a fx exist करेगा. नाउ यहाँ पर तीन चीजें दी गई है, सो वी विल हैव थ्री केसेस ओवर हियर. फर्स्ट केस में हम लेंगे कि अगर हमारी a की वैल्यू 0 है. अगर a की वैल्यू 0 है तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी जैसे ही फंक्शन 0 की ओर जाता है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो ओवर हियर x 0 की ओर जाता है लेफ्ट हैंड साइड से, मीन्स x लेस देन 0 का जो fx का डेफिनेशन है वो यूज करेंगे. वो क्या है? मॉड x प्लस 1. Therefore, this will be equal to limit x tends to 0 minus mod x plus 1. x की वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू मिलेगा 1. सेम वे लिमिट x tends to 0 plus from the right hand side, यानी कि x greater than 0 की ओर से 0 की तरफ जाता है, तो यहाँ पर कौन सा गिवन डेफिनेशन यूज होगा? mod x minus 1. तो यहाँ पर लिमिट आएगी राइट हैंड लिमिट माइनस 1. दोनों लिमिट इक्वल नहीं है तो फंक्शन की लिमिट x इज इक्वल टू 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी. जो सेकेंड केस हम लेंगे वो होगा a लेस देन 0, यानी अगर a की वैल्यू 0 से कम है. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल से आई एम सेइंग x टेंड्स टू माइनस 1, तो वो एक यहाँ पर लेस देन 0 है. तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, यानी माइनस 1. सपोज a की वैल्यू है, एग्जाम्पल इसीलिए दे रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए. तो माइनस 1 की और x जा रहा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड से माइनस 2 से लेकर माइनस 1 तक. तो यहाँ पर ऑब्वियसली x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो कौन सा डेफिनेशन यूज होगा? मॉड x प्लस 1 वाला. इसमें x को हम a रखेंगे तो माइनस a प्लस 1 मिलेगा. अगेन लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, यानी x जो है वो माइनस 1 की तरफ जाता है पर राइट हैंड साइड से, यानी 0 से लेकर माइनस 1 की ओर जाता है. तो भी यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 ही है, तो मॉड x प्लस 1 वाला डेफिनेशन यूज करेंगे. तो यहाँ पर भी हमें राइट हैंड लिमिट मिलेगा माइनस a प्लस 1. सो इस केस में लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है और वो लिमिट है माइनस a प्लस 1. Therefore, the limit exists. Limit x tends to a fx exists when a is less than 0. Correct? और जो थर्ड केस सिमिलर है वो है a greater than 0. a greater than 0 मीन्स फॉर एग्जाम्पल से a 1 है, तो जैसे ही x 1 की तरफ जाता है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से 0 से 1 तक, तो भी x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो वहां पर कौन सा डेफिनेशन यूज करेंगे? मॉड x माइनस 1. So in this case, your limit x tends to a minus mod x minus 1 will be a minus 1. Same way, limit x tends to a plus, it will be a minus 1, the limit. Therefore, both the limits are again equal and that is equal to the limit x tends to a fx. यानी अगर a less than 0 individually है, a greater than 0 है, तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, पर at the point a is equal to 0, the limit does not exist. So, we can say that the limit exists for values of a belongs to r minus 0. After limit,
we will be defining continuity of a function. लिमिट के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी. कोई भी पॉइंट C के लिए अगर लिमिट x टेंड्स टू C fx is equal to f of C, then we can say the function is continuous at the point C. यानी बेसिकली कंटिन्यूटी के लिए तीन कंडीशन चाहिए. सबसे पहले कोई भी पॉइंट अगर हम A लेंगे डोमेन में तो f of A डिफाइंड होना चाहिए. सेकेंड थिंग, लिमिट x टेंड्स टू A fx एग्जिस्ट होना चाहिए. और थर्ड थिंग, कब लिमिट x टेंड्स टू fx एग्जिस्ट होगा? अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है. तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा पॉइंट A पर. अगर फंक्शन हर एक पॉइंट A पर कंटिन्यूस है, इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन एवरी पॉइंट A ऑफ द डोमेन, then it is continuous on the whole domain. Now over here, very important thing is you can actually, when you draw the graph of the function, and if you can draw the graph of the function without lifting your pen, then the function is continuous. अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो फंक्शन का और बीच में आपको पेन लिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि वो ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है, वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है. कोई भी पॉइंट पर अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो हम कहेंगे कि द फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट a और दैट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. इस एग्जांपल से समझते हैं कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट. एक जो फंक्शन जिसको बॉक्स फंक्शन बोलते हैं, दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन which gives the greatest integer less than or equal to that integer. That means say -1.5 का बॉक्स क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर जो -1.5 से लेस होगा, यानी -2. सपोज यू आर हैविंग से 2.5, तो उसका बॉक्स फंक्शन क्या वैल्यू देगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू दैट. दैट मीन्स 2.5 से कौन सा इंटीजर लेस देन होगा? वो होगा 2. So this is a box function, very important function. अब जो सेकेंड केस है उसमें सपोज a इज एन इंटीजर, यानी अगर वो इंटीजर है तो फॉर एग्जांपल वो 1 है, तो इफ x टेंड्स टू 1 तो लेफ्ट हैंड साइड से 1 की ओर जाएगा, से 0.5 0.6, इट विल रिटर्न, बॉक्स x विल रिटर्न द वैल्यू 0. पर अगर वही राइट हैंड साइड से 1 की ओर जाएगा, से 1.5 1.6, इट विल रिटर्न द वैल्यू 1. सो दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होंगे तो फंक्शन है वो 1 पे कंटिन्यूस नहीं होगा. इन जनरल द फंक्शन विल नॉट बी कंटिन्यूस एट अ इंटीजर वैल्यू a. So what have we shown? The GIF function is discontinuous at every integer point. So you have to find all points of discontinuity for the following function. Fx is defined as 2x if x less than 0, x between 0 and 1, then fx is 0, and fx is 4x if x is greater than 1. इस एग्जाम्पल में x is equal to 0 और x is equal to 1 दो पॉइंट्स हैं, तो हमें चार केस मिलेंगे. फर्स्ट केस होगा x is equal to 0. उसके लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे. तो लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी 2x, दैट इज हाउ फंक्शन इज डिफाइंड. इसमें x 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा. राइट हैंड लिमिट जो है उसमें भी x इज लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए 0 ही है, तो वो भी 0 होगा. तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0. सेकेंड केस x इक्वल टू 1, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट में x लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए इट इज गिवन एज 0. और राइट हैंड लिमिट कैसे होगा? राइट हैंड लिमिट होगा x ग्रेटर देन 1 वाला केस, उसमें द फंक्शन इज डिफाइंड एज 4x. तो पुट x इज इक्वल टू 1, यू गेट 4. तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 सेम नहीं है, तो fx डिसकंटिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल टू 1. Third case, x less than 0, so fx is equal to 2x, as it is defined in this manner. And always remember, polynomial functions are continuous, so it is a polynomial function, it is continuous. Same way, if x is greater than 1, it is 4x, it is also a polynomial function, so it will be continuous. So in short, what did you get? X is equal to 1 is the only point of discontinuity for the given function.
नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट, यानी x इक्वल टू π/2 पॉइंट दिया गया है, उस पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो k की वैल्यू फाइंड करनी है. Now we will have to find left hand limit and right hand limit as x tends to π/2 minus, that will be the left hand limit. Remember, इस x tends to π/2 minus को हम h tends to 0 में हमें कन्वर्ट करना है ताकि हम फॉर्मूला लगा सकेंगे. तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से π/2 की तरफ जाता है, दैट मीन्स π/2 इज मोर देन योर x. So we will assume π/2 minus x is equal to h. So x will be equal to π/2 minus h. तो now जैसे x की वैल्यू हम लोग π/2 रखेंगे, h will tend to 0. So limit h tends to 0, x की जगह पर π/2 minus h. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो cos of π/2 minus theta will give you sin theta. cos का साइन हो जाएगा. So k/2 लिमिट h tends to 0 sin h by h, पर sin h by h की लिमिट 1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा k/2. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट में x टेंड्स टू π/2 प्लस, यानी π/2 के राइट साइड से हमें वैल्यू है, तो दैट मीन्स कि हमारा जो x है वो π/2 से ज्यादा है, तो x माइनस π/2 को हम h लेंगे यहाँ पर. तो अगेन x विल बी इक्वल टू π/2 प्लस h. अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू π/2 रखेंगे तो अवर h विल टेंड टू 0. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 π/2 प्लस h. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x एज π/2 प्लस h इन द गिवन फंक्शन. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस साइन h बाई माइनस h इंटू k/2. तो ये भी सिंप्लीफिकेशन के बाद k/2 होगा. दैट मीन्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल एंड दे आर ऑब्वियसली इक्वल टू k/2. इट इज गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट π/2, दैट मीन्स दोनों लिमिट सेम इक्वली होनी चाहिए, दोनों k की वैल्यू सेम होगी. तो k/2 जो है दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. Third condition for continuity, both right and left hand limit should be equal to the limit of the function at that given point. Means they should be equal to f at π/2. f at π/2 का क्या function definition है? 3. It is given f at π/2 is 3. So k/2 is 3. So your k is 6. Answer is k is 6. These functions are continuous in their domain, so just check it out. Try to do these assignment problems. I have given the answer and the way of solution over here. In case of any query, please write in the comment section. I will give the solution. Now the main definition of when a function is said to be differentiable. A function from u to r is said to be differentiable at a belongs to u if the derivative exists. Derivative is defined as f dash of a is equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h, or another way, limit x tends to a fx minus fa upon x minus a. Both the definitions are equivalent, पर generally अगर किसी interval के लिए हमें check करनी है differentiability तो we can use the first definition, किसी point पे तो we can use the second definition. ये थोड़े results है जो differentiability और continuous function पे defined है. A differentiable function is always continuous, but a continuous function need not always be differentiable. और अगर कोई भी function differentiable नहीं है तो वो continuous नहीं होगा, और अगर वो continuous नहीं है तो वो differentiable नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि उसके लिए limit exist करनी पड़ेगी. Now let us see the geometric interpretation of a derivative. Now just consider 2 points, point P which has coordinates a and f of a, point Q which has coordinates a plus h and f of a plus h. Now consider the triangle PQR. The ratio whose limit we are taking here is equal to tan of angle QPR, which is the slope of the chord PQ. That means, first of all, just remember tan of any angle is given by opposite side upon adjacent side. So now consider angle P. For angle QPR or angle P, the opposite side is QR and the adjacent side is PR. So tan of angle P is QR upon PR. But what is QR?
QR is difference of y coordinate, f of a plus h minus fa. And what is PR? It is difference of x coordinate, a plus h minus a, means that is h. So basically your tan of angle P is f of a plus h minus fa upon h. Now when you take your h tending to 0, means when the difference of x coordinate becomes very small, let us see what happens. We can see that when the difference h becomes small, the chord PQ, it tends to the tangent to the curve fx. A tangent, the green line is drawn, that is the tangent to the curve. So when your h becomes very small, you can see that the chord PQ will tend to the tangent of the curve. Therefore, what is that? The limit is equal to the slope of the tangent to the curve at that particular point. So just remember, basically derivative is when you are taking this limit. So derivative is nothing but the slope of the tangent to the curve at a particular point. ये पूरा फॉर्मूला का लिस्ट है which you have to remember by heart all the formulas for derivatives of important function. सबसे important x raised to n का डेरिवेटिव n into x raised to n minus 1 means for example x cube, तो उसका डेरिवेटिव होगा 3x square and all other important derivatives जैसे e raised to x का e raised to x, log x का 1 upon x. और दूसरे दो बहुत ही important रूल्स है, वो है प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल. प्रोडक्ट रूल यानी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो उसका डेरिवेटिव होगा फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, दैट मीन्स जी डैश ऑफ एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. सिमिलरली कोशेंट रूल इज ऑल्सो गिवन ओवर हियर. ये दोनों रूल्स हम लोग एग्जाम्पल्स में यूज करेंगे, तो आफ्टर दैट इट विल बी वेरी क्लियर. अब दूसरे दो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चेन रूल फॉर डेरिवेटिव्स है. चेन रूल फॉर डेरिवेटिव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट मीन्स अगर फंक्शन एफ ऑफ जी टाइप का फंक्शन दिया गया है, y इज एफ ऑफ जी ऑफ x, तो सबसे पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव multiplied by the derivative of the inner function. You can apply this chain rule as many times as you want. दूसरा पोर्शन है चेन रूल का. इसमें ऐसा है कि अगर x और y दो थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में दिए गए हैं, तो इन दैट केस यू कैन अप्लाई dy by dx as dy by dt into dt by dx or dy by dt upon dx by dt. This is also very useful. We will see with the help of examples. जो सेकेंड लिस्ट ऑफ फॉर्मूले है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव आपको रिमेंबर करना है. फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन एंड सो ऑन. सो रिमेंबर दिस बाय हार्ट. जैसे मैंने बोला था, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर डेरिवेटिव्स. Now we start with the example so that it is very clear. Prove that the function f, which is defined as fx is equal to mod of x minus 1, is not differentiable at x equal to 1. यानी अगर हमारा फंक्शन है वो mod of x minus 1 है, तो हमें ये दिखाना है कि वो x is equal to 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है. mod डेफिनेशन क्या है? मॉड ऑफ x अगर हमारा फंक्शन है तो एफ एक्स की वैल्यू x होगी इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और अगर x लेस देन 0 है तो मॉड x इज माइनस x. दिस ऑलरेडी वी हैव सीन. नाउ द फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 1 एंड f ऑफ 1 इज 0. अगर हम x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 रखेंगे तो f ऑफ 1 हमें 0 मिलेगा. अब हमें चेक करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव. जैसे हम लिमिट के लिए चेक करते हैं वैसे डेरिवेटिव के लिए f dash at 1 minus, that is limit h tends to 0 minus f of 1 plus h minus f of 1 upon h. यानी यहाँ पर हमारा a क्या है? 1 है. तो यहाँ पर according to the definition, this is how we get. Now f of 1 plus h, that is 1 plus h minus 1, जो f का definition दिया है, जो भी है f of x minus 1 करना है, तो ये mod h हो जाएगा. h tends to 0 यानी कि फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इट इज नेगेटिव, तो मॉड h के डेफिनेशन में उसकी वैल्यू माइनस h होगी. तो f dash at 1 minus will be limit h tends to 0 minus h minus 0 upon h which is minus 1.
अब सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, एफ डैश एट वन प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच। अगर सॉरी एच टेंस टू जीरो फ्रॉम द राइट हैंड साइड है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड फंक्शन वी विल बी गेटिंग मॉड एच एस एच प्लस एच। तो यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यूज रखेंगे तो हमें लिमिट एच टेंस टू जीरो एच अपॉन एच मीन्स वन मिलेगा। तो दोनों डेरिवेटिव्स इक्वल नहीं है, therefore the function is not differentiable at x equal to 1. Now we have to find dy by dx for the given functions. First function xy plus y square is equal to 10x plus y. प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल हम लोग यूज करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल x इंटू y का डेरिवेटिव क्या होगा, x इंटू वाई प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। पहला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड मीन्स dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन y एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, सो x dy बाई डी एक्स प्लस y। अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, वाई रेस टू एन, एन इंटू वाई रेस टू एन माइनस वन मीन्स टू इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इज सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई माइनस वन। सेकेंड एग्जाम्पल में y इज cos x अपॉन log x, इसमें हम क्वोशंट रूल यूज करेंगे। तो क्वोशंट रूल से डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा log x होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में जो नीचे का फंक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज मीन्स log x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos विच इज माइनस साइन माइनस cos x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ log विच इज वन अपॉन एक्स। तो सिंप्लीफाई करने के बाद dy बाई डी एक्स होगा माइनस ऑफ इंटू ब्रैकेट x साइन x log x प्लस cos x अपॉन x इंटू log x होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x यानी dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, y इज cos इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर है एक अलग मेथड हम यूज करेंगे, वी विल सब्सटीट्यूट x एज tan थीटा। ऑलवेज रिमेंबर ट्रिक क्या है, अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर का भी जो है वो कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसे फंक्शंस होंगे। और हमें पता है कि वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर दैट इज कॉस टू थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू टेन थीटा, हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो y मिलेगा cos इनवर्स ऑफ cos, cos इनवर्स ऑफ cos इज थीटा इटसेल्फ, दैट मींस यहाँ पर cos इनवर्स ऑफ cos टू थीटा इज टू थीटा इटसेल्फ। x इज tan थीटा तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x। तो हमें डायरेक्टली ये फंक्शन सिंप्लीफाइड वे में मिला, y इज इक्वल टू टू इंटू tan इनवर्स ऑफ x। टू इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सो dy बाई डी एक्स इज टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज वेरी इजी एप्लीकेशन यू कैन सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स। यहाँ पर हमने चेन रूल यूज किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लॉग है उसका हम लोग कैसे निकालेंगे डेरिवेटिव, log of something is 1 upon that, so log of cos e raised to x is 1 upon cos e raised to x into derivative of cos e raised to x। cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, सो सबसे पहले माइनस साइन e raised to x, अगेन यहाँ पर e raised to x, तो अगेन उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे e raised to x का, तो e raised to x का डेरिवेटिव होगा e raised to x। So we have used chain rule two times. This is a very nice example in which you can understand the chain rule. So derivative dy by dx होगा minus sin e raised to x upon cos e raised to x into e raised to x, or in simplified form minus e raised to x into tan e raised to x। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उसमें हमें डिफरेंशिएट करना है, फंक्शन है रूट ऑफ x माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। जैसे मैंने कहा था वी विल डू एग्जाम्पल्स ऑल ऑफ डिफरेंट काइंड्स। हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में सब्सटीट्यूशन मेथड यूज किया था, यहाँ पर हम लोग और एक मेथड यूज करेंगे। अगर ऐसा फंक्शन दिया गया है तो हम दोनों साइड लॉग लेंगे, तो log y ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो ब्रैकेट है वो रूट है, दैट मीन्स रेज टू हाफ, तो
what will it be when you take the log on the right hand side? Half into log of whole bracket. Now you know that log of x into y is log x plus log y and log of x upon y is log x minus log y. तो सिंपल रूल यूज करने हैं log फंक्शन के. तो ये जो हो जाएगा फंक्शन होगा log of x minus 1 plus x minus 2 माइनस log of x minus 3 माइनस log of x minus 4 माइनस log of x minus 5. अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो log का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन, तो log y का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ y. राइट हैंड साइड में log ऑफ x माइनस 1 का क्या डेरिवेटिव होगा? 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1. पर डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 तो 1 ही है क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है, कांस्टेंट का 0 है. तो दिस विल बी 1 अपॉन x माइनस 1. सिमिलरली दूसरे टर्म का 1 अपॉन x माइनस 2 एंड सो ऑन. अब तो बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो योर आंसर विल बी dy by dx इज इक्वल टू हाफ. जो y हमने लिया है वो अगेन हम रिप्लेस कर देंगे तो dy by dx इज हाफ इंटू रूट ऑफ x minus 1 x minus 2 upon x minus 3 x minus 4 x minus 5 into bracket 1 upon x minus 1 plus 1 upon x minus 2 minus 1 upon x minus 3 minus 1 upon x minus 4 minus 1 upon x minus 5. Now next example, it involves 4 steps. Try to understand it. You have to find dy by dx for x raised to y plus y raised to x is equal to 1. इस तरह के फंक्शंस को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, यानी कि किसी भी एक फॉर्म में y इज इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस करना बहुत ही डिफिकल्ट है. तो इसके लिए हम लोग एक और वेरिएबल, दो और वेरिएबल लेंगे. सपोज u इज इक्वल टू x रेज टू y और v इज इक्वल टू y रेज टू x. तो अब हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शन u प्लस v इक्वल टू 1. अब डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1. डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v क्या होगा? du बाई dx प्लस dv बाई dx और 1 का डेरिवेटिव 0. तो एक इक्वेशन हमें मिला du बाई dx प्लस dv बाई dx इक्वल टू 0. पर हमें फाइंड क्या करना है अब? du बाई dx और dv बाई dx. तो सेकेंड स्टेप में हम लोग फाइंड करेंगे du बाई dx. u क्या है? x raised to y. Now u is x raised to y. So अब you are having of the form exponent. So take log. Whenever you are having exponent, trick क्या है? जब भी इस तरह का raised to power में होगा तो log लेने से बहुत ही easily solve हो जाता है. तो log u is y log x. अब दोनों साइड डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन u इंटू du बाई dx. राइट हैंड साइड मल्टीप्लीकेशन रूल y इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y. तो यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें du बाई dx मिलेगा. u इंटू u क्या है? x रेज टू y. तो du बाई dx इज x रेज टू y इंटू y अपॉन x प्लस log x इंटू dy बाई dx. अब थर्ड स्टेप में क्या करना है? dv बाई dx फाइंड करना है. तो सेम वे ऑन द सिमिलर टर्म्स v इज y रेज टू x, दोनों साइड log लेकर हम लोग dv बाई dx सिमिलरली फाइंड करेंगे तो वो होगा y रेज टू x इंटू x upon y into dy by dx plus log y. Now just substitute both of these things du by dx and dv by dx in the original first equation. तो ये दोनों हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसके बाद हमें dy by dx को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना है. तो dy by dx को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाकर सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर एज गिवन ओवर हियर माइनस ऑफ y into x raised to y minus 1 plus y raised to x into log y upon x raised to y log x plus x raised x into y raised to x minus 1. This is just simplification which you have to do. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं तो y इज इक्वल टू साइन इंटू टेन इनवर्स ऑफ ई रेज टू एक्स. इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. इससे हमें चेन रूल का भी यूज पता चलेगा. तो y इज इक्वल टू साइन इंटू टेन इनवर्स ऑफ ई रेज टू एक्स. सबसे पहले तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस. तो cos into whole thing tan inverse e raised to minus x into derivative of tan inverse e raised to minus x. So tan inverse का डेरिवेटिव क्या होगा? tan inverse x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square. तो 1 upon 1 plus x की जगह पर यहाँ पर e raised to minus x है तो उसका स्क्वायर into again derivative of e raised to minus x. तो वो क्या होगा? e raised to something, the derivative is the same thing. So e raised to minus x का derivative e raised to minus x into derivative of minus x which is minus 1. So 3 times we are applying the chain rule
It is very simple, but you have to apply the chain rule. So you get dy by dx as minus e raised to minus x cos of tan inverse e raised to minus x upon 1 plus e raised to minus 2x. Remember, we are applying the chain rule multiple times. Now you can also find the second order derivatives of function. In fact, you can find second order, third order, any finite order of derivatives. So fx है उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो f डैश x मिलेगा. सेकेंड टाइम f डैश x का अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे तो f डबल डैश ऑफ x मिलेगा. सो द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज f डबल डैश ऑफ x, और समटाइम्स यू कैन से एस y2. एग्जाम्पल सीखते हैं. फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू e रेज टू x इंटू साइन फाई x. यानी हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है. दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा. अगेन इसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन है तो उसका रूल यूज करेंगे. तो फर्स्ट डेरिवेटिव मिला ई रेज टू एक्स इंटू फाइव कॉस फाइव एक्स प्लस साइन फाइव एक्स. फिर से इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो अगेन मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करेंगे. इसमें फर्स्ट फंक्शन जो है हमारा वो है ई रेज टू एक्स. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन. कॉस का माइनस साइन, फाइव एक्स का फाइव, साइन का कॉस. सिमिलरली सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई रेज टू एक्स. तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेज टू एक्स ही है. तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन एंड यू गेट द सेकेंड डेरिवेटिव और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एज 2 इंटू ई रेज टू एक्स 5 cos 5x minus 12 sin 5x. Now this example is if y is equal to 3 cos log x plus 4 sin log x, show that x square y2 plus x y1 plus y equal to 0. ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत पूछते हैं. y1 है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है, y2 है वो सेकेंड डेरिवेटिव है. तो सबसे पहले y का फर्स्ट डेरिवेटिव y1 निकालते हैं. तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, log का 1 अपॉन x, और सेकेंड टर्म में साइन का डेरिवेटिव होगा cos. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, क्योंकि हमें इक्वेशन में x इंटू वाई वन चाहिए तो हम लोग जो डिनोमिनेटर में x है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं. तो x इंटू वाई वन हमें मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स. अब कीप इट असाइड, सेकेंड डेरिवेटिव y1 में से y2 निकालते हैं. तो y1 जो है उसमें जो फर्स्ट टर्म है उसमें इट इज क्वोशंट रूल यूज करना पड़ेगा. fx अपॉन gx टाइप का फंक्शन है. तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर होगा, न्यूमरेटर में होगा x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस 3 साइन लॉग x. तो साइन का अगेन कॉस, लॉग का 1 अपॉन एक्स. सेम वे माइनस 3 साइन लॉग एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विच इज 1. उसी तरह से सेकेंड टर्म सिंप्लीफाई करना है. टेक केयर बाय सिंप्लीफिकेशन. तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अब इसमें डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर मिलेगा. तो हमें क्या चाहिए इक्वेशन में एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू. तो एक्स स्क्वायर ब्रिंग इट ऑन लेफ्ट हैंड साइड. सो एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू का पूरा इक्वेशन मिलेगा. लेट दैट इक्वेशन बी 2. नाउ जस्ट चेक इट आउट whether your x square y2 plus x y1 plus y gives you 0 or not. आप बराबर values रखेंगे तो you will be getting the answer as 0. One more nice example, if x is equal to a into cos t plus t sin t and y is equal to a into sin t minus t cos t, find second order derivative d square y by dx square. Now remember this is like we are using the second part of the chain rule जिसमें x और y दोनों function third variable के term में which is t. So you have to use the chain rule dy by dx as dy by dt upon dx by dt. Simplify it, again take the derivative to find d square y by dx square. I have given the solution over here. Try to see whether you get the answer or not. Students, please subscribe to the channel for mathematics class 9 to 12 and for JEE short tricks.